Hello students, today I am going to introduce about the next topic of the chapter structure of the atom. Now the next topic is different atomic species. In the atomic species, the first species is isotopes. Iso means same. It means the atom of same elements having same atomic number. Same atomic number but a different mass number. But a different mass number. Now what do you mean by atomic number? Atomic number is represented by Z and mass number is represented by A. Now atomic number is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom, but the mass number is equal to the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. These protons and neutrons is called as nucleons. Okay. Now how will you define the isotopes? Isotopes means the atom of same elements having same atomic number but different mass number. Okay. For example, isotopes of hydrogen. For example, we take the three isotopes of hydrogen. Protium, one atomic number, one mass number. This is atomic number, this is mass number. Deuterium, having one atomic number but two mass number. And the next is tritium. This is having three mass number and one atomic number. This is means protium, deuterium and tritium. Now we can say that the isotopes have same number of protons but different in the number of neutrons. Each isotopes of the element, that is pure substance. Okay, the chemical properties of the element that depends on the electronic configuration, or you can say that the outermost electrons. Okay, the isotopes of an elements have similar electronic configuration, means the isotopes also have the same chemical properties. The mass of isotopes that are different but atomic number is same, means physical properties like density, light scattering, that depends on the mass and they are different for the isotope of an element. Okay, this is all about the isotope. Now how will you calculate the average atomic mass? Average atomic mass. If an element has no isotopes, it means the mass of an atom that would be same as the sum of the protons plus neutrons present in the nucleus. Okay, if the elements that occur in the isotopic form, अगर कोई एलिमेंट बेटा आइसोटॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट मीन्स हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द each isotopic form? Then the average atomic mass, that is calculated by, then the average mass is calculated by, कैसे करेंगे बेटा? जो average atomic mass है of an element that is equal to, इसको निकालेंगे atomic mass of first isotopes. कौन से isotopes का? First isotope multiply percentage of isotope number 1. Okay, isotope 1 multiply. Okay, इसके बाद यहाँ पे आएगा सॉरी प्लस साइन. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप प्लस सॉरी मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप सेकेंड. ओके, ये फॉर्मूला बन जाएगा. फर्स्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1 plus atomic mass of isotope 2 multiply percentage of isotope 2. Okay, suppose I will take one example.
टू आइसोटॉपिक फॉर्म है बेटा क्लोरीन एटम की, क्लोरीन एटम विद मास नंबर, एक का तो मास नंबर क्या है 35U है एंड दूसरे का है 37U एंड दैट आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ये इसकी रेशियो है और ये है इसके मास। ओके, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एवरेज एटॉमिक मास, कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो देखो बेटा, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 दैट इज 35 मल्टीप्लाई, अब बेटा 3 + 1 4 पार्ट है, मीन्स 3 + 1 4, 4 में से 3 रेशियो है, इट मीन्स दिस इज 75% आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 75% पार्ट इसका क्या है, ये परसेंटेज है 75%, तो ये आपका इधर आ जाएगा। ओके, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप दैट इज 37 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सेकेंड। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये 75% है तो ये कितना बचा 25%, 25/100। ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेटेड दिस विल बिकम, ये 25 3 जा 75 एंड दिस इज 4 जा 25 1 जा 25 4 जा, this will be 105/4 plus this is 37/4. okay, so after calculating what is the answer, this is 4 and this is 142, this is 35.5 U. U means unified mass, means this is 35.5 U is not the atomic mass of any one atom of chlorine, but it shows that its given amount contain both the isotopes, means the average atomic mass that is 35.5 U. okay, now I will take another example of bromine. okay beta, bromine atom, bromine atom is also available in two form of isotopes. First isotope that is 79Br35 and this is 49.7%. okay, and second bromine that is 81Br35 and it is present in 50.3%. okay, then how will you calculate the average atomic mass of bromine atom? तो first of all beta, average atomic mass, average atomic mass is equal to mass 79 multiply how many percentage 49.7/100. okay, plus 81, इसका 81 है multiply 50.3/100. okay, then how will calculate, after calculated 39.263 plus after this calculated 40.743. okay, and then after added 80.006 U. so this is the atomic mass, average atomic mass of bromine atom, not for one bromine atom, this is both the bromine atom. okay, now next is what are the applications of isotopes, applications of isotopes. देखो बेटा, आइसोटोप्स की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूल में यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं बेटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, यूरेनियम 238, आपने नाम सुना होगा यूरेनियम 238 दैट इज यूज टू determine या टू फाइंड आउट द एज ऑफ वेरी ओल्ड रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो एज किस लिए, एज ऑफ ओल्ड रॉक पार्टिकल्स, जो चट्टानें होती हैं
उनके लिए यूज़ होता है, और इसमें हम अर्थ की एज को भी फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ दिस इज द 2 एप्लीकेशंस. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पॉइंट नंबर 3, द आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट 60. आपने सुना होगा कोबाल्ट 60. कोबाल्ट 60 आइसोटोप दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. किस में यूज करते हैं बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर की ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 4, एन आइसोटोप ऑफ कार्बन 14. okay, carbon 14 is used to determine the age of old specimen, age of old specimens of wood. ठीक है, लकड़ी की एज को फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड बोन्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसकी एज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, isotope of iodine 131. Iodine 131 is used in the treatment of goiter disease. Okay, treatment of goiter disease. Goiter disease किसकी deficiency से होता है बेटा? It is due to the deficiency of iodine. Okay, और इसमें क्या होता है, जो goiter disease होता है उसमें जो नेक होती है वो नेक swollen हो जाती है. ठीक है, now the next topic is isobars. Okay, iso means the same, bars means mass number same but atomic number different. Now the atom of different elements with different atomic number means atomic number different but mass number same, but same mass number. This is called as isobars, same mass number. Isobars are the atoms of different elements and they have same number of protons and neutrons. Means protons और neutrons means same number of nucleons. इसमें क्या होता है कि nucleons का जो नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, सेम होता है. NuCleons. न्यूक्लियंस मीन्स न्यूक्लियंस का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. दैट नंबर इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज डिफरेंट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट. ओके, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल इज 40 आर्गन 18 एंड 40 कैल्शियम 20. These are the isobars. Why these are called as isobars? Because mass number is same, that is 40, but atomic number is different, that is 18 and 20. The isotopes have different atomic number as well as different electronic configuration, so they have different chemical properties. Okay, so this is all about the isobars. Now नेक्स्ट इज आइसोटोन्स. एक नया वर्ड है बेटा ये आइसोटोन्स. इसमें क्या होता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट रिमेन्स सेम. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 14 C6, 16 O8. दीज आर आइसोटोन्स. अब ये आइसोटोन्स क्यों है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम. क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू 8. देखो कैसे, 14 माइनस 6 न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8. और यहाँ पे 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8. मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट रिमेन्स सेम. ओके, न्यूट्रॉन्स सेम. So these are isotons. Okay, now one questions arise from here कि suppose there are the following pairs. Suppose this is A pair, this is B pair, this having atomic mass number 58, this is also having mass number 58.
this is 26 and this is 28. Okay, now question arise from here कि which of the above pairs, that is isotopes and isobars, कौन सा isotopes है कौन सा isobars है, इसमें ये बताना है. एक ये, ठीक है. सेकेंड पेयर ये है आपका, दिस इज 79 here 35 and this is 80 y 35. फर्स्ट पेयर एंड दिस इज सेकेंड पेयर, दोनों में बताना है विच वन इज आइसोटॉप्स एंड विच वन इज आइसोबार्स. ओके, तो देखो बेटा, अब जहाँ पे आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो. अब एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. सो सेकेंड पेयर इज, दिस पेयर इज आइसोटॉप्स एंड दिस इज, यहाँ पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दिस इज आइसोबार्स. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट ये कहता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्क्रिप्ट, दैट इज 79 to 80 थ्रू द एलिमेंट इज सेम. ठीक है, तो इसमें हम ये बताएंगे कि जो x एंड y है, that pairs are isotopes and isotopes having same atomic number means same number of protons but different in the number of neutrons. Okay, we can say that their mass number is different from each other because the mass number is the sum of protons plus neutrons. Okay, so they are isotopic pair. Okay, now the third question arises from here कि give the nuclear composition of 58A26. इसकी न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन बतानी है. न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं एंड कितने न्यूट्रॉन्स हैं. तो बेटा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इस वाले पेयर में ओनली दिस वन. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स इज 26 क्योंकि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons is also 26, but how many number of neutrons present here. Neutrons कैसे निकालते हैं, mass number minus atomic number means 58 minus 26 that is equal to 32. ये आ जाएगा आपका. Okay, now the next question is will 35Cl and 37Cl have different valency. तो हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना है, क्या इनकी डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं. देखो डिफरेंट वैलेंसी, देखो देखने में दोनों ही सेम एटम है बट इनकी जो वैलेंसीज होती है डिफरेंट होती हैं. क्यों होती हैं, तो इनकी वैलेंसीज जो होती है बेटा वो डिफरेंट नहीं होती. इसने पूछा था विल, तो आंसर दोगे नो, इनकी वैलेंसीज क्या है, डिफरेंट नहीं होती हैं बिकॉज दीज आर आइसोटॉप्स. क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, मीन्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स कॉन्फिगरेशन इज जस्ट लाइक दिस, 35 chlorine 17 that is equal to 37 chlorine 17. It means KLM shell, this is 2 8 and 7. तो इसकी जो वैलेंसी होती है बेटा, जो वैलेंसी है नॉन मेटल्स की, वो क्या होती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हेयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, देन दैट इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द वन पेयर ऑफ आइसोटॉप. हमें आइसोबार्स, हमें आइसोबार्स का एक पेयर लिखना है एंड व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स दैट आर नॉट सिमिलर. आइसोबार्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है दैट आर नॉट सिमिलर, ऐसा क्यों. देखो बेटा पहले तो हम आइसोबार लिखेंगे 40 आर्गन 18 एंड 40 कैल्शियम 20. दिस इज द पेयर ऑफ आइसोबार्स बिकॉज दे आर सेम मास नंबर, मीन्स मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट. यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. ओके, तो इस केस में देखो क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दैट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके, the isobars of the elements have different atomic numbers
and they have different electronic configuration, so they have the different chemical properties. Okay, now the next question is number of protons, neutrons and electrons in the four specimen A B C D, these are given. Okay, इसमें है बेटा 6 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 6 गिवन है। स्पेसिस सी में भी इसमें 7 गिवन है, इसमें 6 8 6 है और इसमें है 9 10 एंड 10. विच ऑफ दैम आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, वाई? अब इनमें से बताना है कौन सा आइसोटोप्स है। सेकेंड हमें बताना है कौन सा आइसोबार्स है और क्यों है। देखो बेटा, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस? आइसोटोप देखो, ये आपका ए है, प्रोटॉन भी सेम, न्यूट्रॉन भी सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम, तो ये तो आपका क्या है, आइसोटोप है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का नंबर क्या है, सेम है। ओके, अब ए और दूसरा सी भी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है इसमें भी, लेकिन इसमें भी सेम है, इसमें डिफरेंट है। ओके, तो आपका ए एंड सी आर आइसोटोप्स बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो ये क्या है, आइसोटोप्स है। एंड आइसोबार्स दे आर हैविंग बी एंड सी। इसमें क्या होता है बेटा, सेम मास नंबर सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पर इसमें प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, अब मास कैसे निकालेंगे, मास नंबर ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितना है बेटा, 7, न्यूट्रॉन्स कितना है, 7, 7 + 7 14, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बी का जो है आपका मास नंबर क्या आएगा, 14, बट द मास नंबर ऑफ, नाउ द मास नंबर ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज 8, that is equal to 14. Okay, now the next question is, why is atomic mass of chlorine taken as 35.5 U but not taken as a whole number like 35 U और 36 U? ये नहीं लेते बेटा, ऐसा क्यों? देखो इसमें क्या रीज़न है, क्योंकि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन नेचुरल स्टेट में हमारे पास 2 आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है। वन इज़ एटॉमिक मास 35 एंड सेकेंड इज़ एटॉमिक मास 37 U। ओके, और ये भी 3:1 में होता है। तो जब हम इसका जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का, वो क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटॉप्स लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 आउट ऑफ 4, 3/4 प्लस 37 मल्टीप्लाई, दिस इज 1 पार्ट, 1 हैविंग आउट ऑफ टोटल कितना है, 4 पार्ट। तो ये आपका जो है एवरेज आएगा, दिस इज 105/4 प्लस दिस इज 37/4 एंड दैट इज इक्वल टू 35.5 U. Okay, now the next question is the relative abundance of 2 isotopic form of copper की फॉर्म है बेटा, one is a 63 Cu29 and another is 65 copper 29.
दे आर 70% एंड 30%, वो 70% है, ये 30% है. ओके, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज मास नंबर ऑफ कॉपर इन द गिवन इंफॉर्मेशन. तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास. नाउ एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू, मास नंबर कितना है 63 मल्टीप्लाई 70/100. ओके, प्लस सेकेंड है एटॉमिक मास 65 मल्टीप्लाई 30/100. तो इसको हम काटेंगे बेटा यहाँ से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आपका जो है बचेगा 441/10 प्लस दिस इज 4.1 प्लस 19.5. ओके, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लेंगे बेटा यहाँ पे now 63.6 U. So this is the average atomic mass of copper. Okay, now the last question is, why do isotope of an element shows similar chemical properties? It shows similar chemical properties. देखो बेटा, इस केस में हम क्या लेते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किस पे डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम. सो जो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, same atomic number or the number of electrons or the number of electrons, and they have same electronic configuration, so the isotopes shows similar chemical properties. Okay, so all these questions are very important for your exams, you can do easily. Now one more question is arise from here beta. An atom of an elements have 9 protons. 9 क्या है? Protons है. 9 electrons and 10 neutrons. Okay. Now first you have to find out the atomic number. इसका atomic number क्या होगा? बेटा जितने number of protons होते हैं वही उसका atomic number होता है. It means atomic number is 9. तो इसकी K and L shell में distribute करेंगे 2 and 7. Okay. नाउ व्हाट इज़ द वैलेंसी. वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर लिया है. तो इसमें क्या है बेटा, ये क्या है, 7 है. तो इसमें से क्या करेंगे, नॉन मेटल है. नॉन मेटल में क्या होता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो इट्स वैलेंसी इज 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.